Ninth class. Today we are going to study about our next topic, which is about the shape of the periodic table. We have already discussed about the different properties of the periodic table and how to read it. आप लोगों को के सामने फिगर है पीरियोडिक टेबल की, और आप लोगों को मालूम है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो एक टेबल की फॉर्म में अरेंज है, और इसमें आपके पास जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं दे आर कॉल्ड पीरियड्स एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम. सो इफ़ वी स्टडी इट in the form of its periods, we can see that the first period, this one, which contains only two elements, hydrogen and helium, and it also means that the first period which contains only two elements, and as you also know that the modern periodic table is based on the ascending order of the atomic numbers of the elements. It means that hydrogen is having the atomic number 1 and helium is having the atomic number 2. So the first period corresponds to K shell of the elements. It means that in first period the value of n is 1, which corresponds to K shell. And you all know that in K shell the maximum number of electrons resides are 2. जब आप 2n² का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपको मालूम है कि n is 1, so it is equal to 2. So in first period the maximum 2 electrons can be accommodated. When the K shell is completed, the first period is completed. Hydrogen has 1 electron, helium has 2 electrons in its K shell. Then we move towards the second period. हमारा second period है, this is known as the short period. ये जो first period है इसको हम shortest period कहते हैं, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, जबकि सेकेंड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, थर्ड पीरियड को भी हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं. बोथ ऑफ देम हैव मैक्सिमम 8 electrons in them. The second period corresponds to n is equal to 2. Second period है तो n is equal to 2. It means that the valence electron will move in the L shell. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिथियम से स्टार्ट होकर जब नियॉन तक जाएगी तो इट विल बी 2s2 2p6. ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. और अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दिस इज़ ns np ns2 np6. ठीक है. थर्ड पीरियड corresponds to third shell, n is equal to 3, and it means that we are studying m shell. सोडियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बी 3s1. दिस 3 means that we are having our electron in valence electron in the third shell. और अगर हम आर्गॉन की देखेंगे तो इट विल बी 3s2 3p6. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स m शेल में रिजाइड कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट 2 periods, fourth period and fifth period, are known as the long period. They contains 18 elements each in them, and the sixth and seventh period are the longest period of the periodic table. So अगर हम इसको पीरियड्स की फॉर्म में पढ़ेंगे तो हमारे पास 7 periods हैं, और सिक्स और सेवन्थ पीरियड जो हमारे पास है उसमें हमारे पास एक नीचे भी 2 extensions हैं. One is known as the lanthanide series, for which is the extension of the 6th period, and the other one is the actinide series, the extension of 7th period, and it contains those elements whose valence electrons are present in the f orbital. So they are having different properties than the rest of the elements. इसी तरह से जब हमने इसको एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से अरेंज किया है in
इस पीरियोडिक टेबल में, तो हम देखते हैं कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं दे शो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं, और मैं नॉर्मल ग्रुप की बात कर रही हूँ, इट मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ए ग्रुप। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि सब ग्रुप ए रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, एंड देयर आर टोटल 8 groups which contains the normal elements in them. So first A that shows the outermost electronic configuration as an S1. आप देखेंगे लिथियम से चलें, स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पीरियड में है लिथियम, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1। फिर सोडियम थर्ड पीरियड में है, तो 3s1 इज़ इट्स आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड पोटाशियम की 4s1 एंड सो ऑन। तो सब में क्या चीज़ कॉमन है? आप देख रहे हैं नंबर ऑफ़ पीरियड्स तो चेंज हैं, यानी लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, पोटाशियम बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, but the outermost shell electron is present in the s orbital, and that is only one electron which is present in the s orbital. और ये जितने भी elements हैं starting from lithium to francium, they show same outermost shell electronic configuration, and they also show periodicity of properties. It means that their properties are comparable to each other, their physical and chemical properties, and they only change slightly for different elements. इसका ये मतलब भी है कि अगर आपको इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ बता दी जाएं तो सब एलिमेंट्स की एक तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, लाइक अगर आप अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शंस देखें वाटर के साथ, तो दे विल शो सेम टाइप ऑफ रिएक्शंस, और आपके पास अल्कलीज बनेगी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो एक तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो एक तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स, क्योंकि वो एक ही तरह की आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। उनके आउटर मोस्ट शेल में एक जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे ग्रेजुअली चेंजेस। जैसे आपके पास लिथियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट उससे कम हो जाएगा, पोटाशियम का उससे कम हो जाएगा, बट दिस चेंज इज़ द ग्रेजुअल चेंज। सो ये जो हमारे सामने ग्रेजुअल चेंजेस आ रही हैं, this shows the periodicity of property. हाँ,